Hello children. So in the previous class we are done with the nervous system. We have studied that there are two ways the control and coordination take place in the animals. One is the neural control and coordination and the second is the endocrinal or the hormonal control and coordination. It is the right time to see the differences between their working. Okay, that is how neural control and coordination is different from the endocrinal control and coordination, or rather hormonal control and coordination. What is the difference between? Say for example, you are living in an era somewhere about 10 years behind, or when you were just a small child. Somewhere about when you just took admission in LKG. That was the time most of the people never had mobile. If we had to communicate with someone, the only means we had was a telephone. So in the telephone, what we used to do, we used to take the receiver and we used to dial the number, and when the number used to be connected to a particular person whom you are dialing, and then you had a conversation. The conversation was with the help of wires. The two people were connected through and through with by wires. Okay. Now in the telephonic conversation, the conversation is instant. Okay, like you just ask a question and you will get the answer, reply. Okay, so this is an instant conversation. Okay, thirdly, the conversation is two-way. That is, you ask something and the person also reply you there and then. Okay, and the impact of the conversation lasts only for a few minutes. Say for example, when I was small, okay, I used to be in hostel. My mother used to write a letter. Then I used to reply the letter. Now the letter used to take 3 to 4 days to reach to the person. Like if I write a letter, so mommy used to receive it after 4 or 5 days. If she used to write, I used to get it after 3 or 4 days. Okay, and these letters, when my mother used to write something, I used to read it and then I used to keep it under my pillow. Every time, because I am missing mother, I used to open it, I used to read it, again I used to keep it under the pillow. And the impact used to last long, wherever mother used to write anything. But in the telephonic conversation, it is not like that. Telephonic conversation, it is not like that. Here the impact lasts only for few seconds, few minutes or few hours. Okay? So every time you have to be reminded. You have to be reminded. The impact is slow. So if I summarize the difference between the neural control and coordination, and endocrinal control and coordination. So what are the differences? You have to remember these two examples. That is the telephonic conversation and the letter. Okay, postcard. See, we have already done the neural control and coordination, which we have compared with the telephonic conversation. On the other hand, the endocrinal control and coordination is just like a postcard. You write a postcard, it will take its own time to reach to the destination. Secondly, it is an open letter. Anybody can read it. So suppose it is written, बेटा अच्छे से पढ़ाई करना एंड एग्जाम में अच्छे से लिखना, और वो वाली घड़ी जो मैंने तुम्हें दी थी वो बांध के जाना, और वो जो लॉकेट मैंने दिया था that you wear. Now anybody read, what difference does it make? If a postman is reading, is he going to get the examination? Or has he got that watch which my mother has given? Or has he got that medal or the pen or the thing? So it is specifically for me. So who is the target? I am the target. So though the message is open to everyone, but it will reach to the targeted person and he will respond to it. So first it is taking time, second it is open for all, but it is reaching to a target and the target is responding. And the third is the impact is lasting long. As I said, one letter I used to get, then till I receive second letter, even if the second letter is there, then also the things which have been mentioned in the letter will continue to be remembered by me. Okay, it will not be like this. The telephonic conversation, मम्मी क्या बोला था आपने, मैं भूल गई. So that is instantaneous, because you are just
hearing, and that it is a old Chinese what you call saying. This is, I heard something and I forgot it within hours to days. ठीक है. Then I read something, I remembered it for long, or I saw something, I remembered it for long, and I did something I remember for throughout life. And that is why when I say, or most of the teachers say, you must write what you are listening, what the notes you have to make your own, not the dictation. So when you are making your own notes, what you are doing, you are engaging your hearing, which will be for momentary, थोड़े टाइम में भूल जाएंगे, but vision, which will be remembered for long, and when you are doing something with your hands, that will remember for much longer, and if you are doing any activity practical, then it will be forever. So that is the difference. That is the difference. ठीक है. And that is why that the letter which I got, it will be remembered for several days, not forever. For several days, because I said vision will be remembered for several days. Okay. Or the third is, that is the generally the letter which is given. Now if I replace the letter with the newspaper, now Government of India sends a message, say for example income tax. Okay, government department saying income tax. Now income tax ने दिया कि the 30th June will be the last date, or July is the last date for submitting your IT return, after which you will be imposed a fine. Now you cannot send a letter, you cannot send a message, even if you say nobody will be listening. So it will be one-way conversation, from where to where, control to the target, not from the target to the control. ठीक है. So 4 ways I said. Okay, so you can compare the neural control and coordination. I am just telling the example, you need not to write in the exam. Okay, this is only for your understanding, that it can be compared to the telephonic conversation, and this can be compared with the newspaper या gadget जो भी है, ठीक है, और letter. Okay, so what happens? It is instant. It takes time. Paper छप के आएगा, time लगेगा. This is two way. This is one way. It is connected by wires. There is no connection. ठीक है? Its impact lasts only for short period. Its impact will last for longer. ठीक है? So these are the 4 different ways by which the neural control and coordination differ from the endocrinal control and coordination. 4 ways. What? First, दोबारा से रिवाइज करते हैं. पहला, connected by means of the nerves. There is no such connection lies here. It is two-way conversation from the sensory organ to the that is controlling object, and from controller to the motor. Here it is only one way, from the control unit to the target object. ठीक है? It is instantaneous, and it will be taking sufficiently long time. Then its impact is very short lasting. आपने चुटकी बजी और उंगलियां खुल गई. ठीक है? Instantaneously you see how many times wings of the hummingbird flutters in a minute. So how fast the impulse are reaching and dying. Where its impact will be there. आपका इम्पैक्ट आया कि मुझे जनरेट करनी है. अभी आप लोग हो ही गए ना, यू आर रीच टू दैट एज, तो देयर आर नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ ब्लैकनिंग ओवर ईयर. सो इम्पैक्ट इज नॉट दैट एक रात को आप उठेंगे तो टक 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 कर कर सारी मुझे उठ के आ गई. इट विल बी स्लोली एंड ग्रेजुअली इट विल स्टार्ट. फर्स्ट बिल्कुल फाइन से हेयर्स आएंगे, एंड बाय द टाइम यू विल रीच टू 12th क्लास यू विल हैव. सो इट हैज टेकन sufficiently long time. Unlike if I to move hands, ऐसा नहीं है मैं आज कमांड जनरेट करूंगा और 2 साल बाद मेरा हाथ वहां पहुंचेगा. Okay, so that are the, and then they got the receptor, they don't have such receptors and all. ठीक है? तो ऐसे इनके इम्पैक्ट हो गए. ये क्या है, अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था, that is these are electrochemical in nature, and ये कैसे हैं, purely chemical in nature. So there are number of differences.
ठीक है, it is controlling all the body parts including endocrine. Endocrine is controlling only and only certain body parts where the targets are there, ठीक है, but no way it is controlling your neural control coordination, ठीक है. So I think it is clear to you what are the differences. Okay, चलिए, then we can go ahead with the endocrinal control and coordination. Now endocrinal control and coordination, or hormonal control and coordination, or chemical control and coordination, whatever way you want to put, ठीक है, you can put. Now chemical control and coordination is done with the help of enzyme and hormone, and the hormones are secreted from the endocrine glands. And what are the endocrine glands? चलो ये भी बता देते लगे यार. तो endocrine glands are those glands which are not secreting their secretion to the target organ. ठीक है, endocrine कौन सी होती है? Endocrine glands are putting their secretion into bloodstream. Bloodstream. It is open. It is open to all. Anybody can read. जैसे मैंने बोला पोस्ट कार्ड, हर कोई पढ़ सकता है. पोस्टमैन भी पढ़ सकता था. Anybody फ्लैट पे आया, लेटर नीचे पड़ा हुआ है. Anybody can read it. और न्यूज़पेपर में आया 31st July is the last day to submit your IT return. Anybody can. Many of you आप लोग कौन सा रिटर्न फाइल करते हैं? आपने भी पढ़ा. ठीक है, a carpenter, a plumber, चौकीदार, anybody and everybody is reading, and there are so many messages, there are so many things which we read. ठीक है, तो हमारे को क्या, is it directly or indirectly affecting us? No, but we can read. Similarly, the hormones are put into the bloodstream. It is flowing through all over the body gradually, taking time. Yet only the target organ will be responding, not others. Say for example, a school's examination was supposed to held in one school, say for example, okay, and due to some reason that particular center has got some problem. Maybe that electricity failed, or maybe some building collapsed, or maybe some its teachers have gone on strike, or whatever XYZ reason. And on last moment they had to cancel that spot and they had to change it to some other spot. So what is the easiest way? What is the easiest way? Publish it in the newspaper. उसको FM में सुना दो, FM रेडियो पे सुबह से पिछले दिन से पूरे टाइम every 5 minutes के अंदर just go on barking this, the फलाना center is being changed to this center because of the some unavoidable reasons. So anybody can read, but जाएगा कौन सेंटर में? आप जाएंगे क्या? मैं जाऊंगा क्या? मेरे को थोड़ी भी एग्जाम देना, एग्जाम दे के हो गया मैं तो खत्म. तो there are number of people who will be reading, listening, hearing, but only a certain people will be responding. Who are responding? Target. जो उसका target है वो respond करेगा. So the hormones are in the bloodstream. It is passing all over the body. Every tissue, every cell is reading it, but they are not showing any effect. ठीक है? Such glands will put their secretion into blood because they do not have their ducts. उनके पास अपनी ट्यूब्स नहीं है, उनकी नलियां नहीं है, उनका कोई tubular system नहीं है which will be secreting their secretion to a target. Rather, they are putting it in the blood. ठीक है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में क्या था? जो मुझे कहना है, जिस पर्सन को बोलना है, जिसको कहना है उसको फोन करूंगा, वो रिसीवर उठाएगा, nobody else can get it. Here क्या है? It is published on the newspaper. Any XYZ can read wherever newspaper is reaching. ठीक है, so that is the difference. I think this is more than enough. तो हॉर्मोन्स जो होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं. तो क्या आ रहा है यहाँ पे? What are secreted? Hormones. Interestingly, they are secreting only and only hormones. There are other kinds of glands. They are called exocrine. Other kind of glands. They are exocrine, and they have got their ducts, which will take the secretion. Salivary gland, tear gland, mammary gland.
ठीक है. एंड देयर आर अदर ग्लैंड्स व्हिच आर सीक्रेटेड फ्रॉम द लाइक लिवर एज अ ग्लैंड, तो वहाँ से भी सीक्रेशन बाइल डक्ट लेकर के जा रहा है. पैंक्रियाज इज डक्ट, तो पैंक्रियाटिक डक्ट, तो दे हैव गॉट देयर ओन डक्ट्स व्हिच विल बी टेकिंग देयर जूसेस टू द रेस्पेक्टिव प्लेसेस, सीक्रेशंस टू द रेस्पेक्टिव प्लेसेस. ठीक है. एंड दैट विल बी ओनली बिटवीन दीज टू, जहाँ पे बना और जहाँ पे पहुंचा उन्हीं के बीच की बात है, दूसरा किसी को पता नहीं पड़ता है. इट इज नॉट रिवील्ड टू द अदर. तो एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन आपको समझ आ गया. ठीक है. ओके, so we are on the endocrine glands and there are number of endocrine glands which we have to study. Let us see one by one. First is hypothalamus, and I think you all know कहाँ पे पढ़ा है hypo, H by P O T H A L A M U S. Hypothalamus. Where is it located? You all know it is in the forebrain. कहाँ पे था वो? सेरेब्रम के नीचे की तरफ. छोटी सी ग्लैंड है, छोटी सी ग्लैंड. And what is it? Is in constantly in contact with all the sensory organs. So it is in constantly in touch with the brain. So brain notices. ठीक है. Have you ever imagined how a particular animal breed only in a particular season? उनको क्या मालूम, उनके पास क्या कैलेंडर है? How they come to know कि भाई ये फलाना महीना आ गया, अभी हमारा ब्रीडिंग का सीजन है. So that is because the various type of changes noticed by the various sensory organs, touch, temperature, pressure तो क्या चेंज होगा, फिर ये आंखें. हाउ अ पर्टिकुलर बर्ड नो कि भाई मेरे को माइग्रेट करना चाहिए, बिकॉज दे आर सीइंग द टेम्परेचर, द डे लेंथ इज इंक्रीज. ठीक है. सो सम चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू. वो दोज चेंजेस आर रिसीव्ड बाय द सेंसरी ऑर्गन. दे आर टेकन टू द हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस कम्स टू नो कि बोला अच्छा ऐसा हो गया, एंड देन दे ब्रिंग द वेरियस चेंजेस. एक कहानी सुनते हैं छोटी सी. एक बार हमारे देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक रतन टाटा, ही वॉज गोइंग इन हिज कार. ठीक है. इज गॉट अ कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ गुड कार्स. तो उनके पास अब जो भी कार हो गया हमें क्या पता, उसमें जा रहे थे. ही वॉज ड्राइविंग और हिज ड्राइवर वॉज ड्राइविंग, आपको पता नहीं है. बट व्हेन ही वॉज गोइंग अहेड देयर वाज अ फैमिली गोइंग, 4 पीपल ऑन अ स्कूटर, हस्बैंड, वाइफ, 2 चिल्ड्रन. एक को आगे खड़ा कर रखा, एक को मम्मी ने गोद में ले रखा. Husband and wife are going to reach their children to the school and then they are going to their respective workplace. अभी क्या हुआ ना, बारिश शुरू हो गई. अभी बारिश शुरू हो गई तो आप जानते हैं ना बॉम्बे की बारिश कैसी होती है. एवरीवेयर वाटर 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 वाटर, and once it is water you can't see what kind of roads are there, whether there is a pothole, where there is a gadda, where there is a stone, whether there is something. So this couple, they had to go, and Bombay people are familiar with all this. So उन्होंने अपना रेनकोट, अम्ब्रेला जो भी निकाला, रतन टाटा was following him, that couple, that family. तो उन्होंने कहा यार ये देखो how बहुत generous person है ना. I think one of the most generous person after Ajim Premji in India. The most donation is done by these people. Okay, तो रतन टाटा, अगर टाटा की पूरी की बात करेंगे तो उनका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इंडिया में डोनेशंस का, है ना. अभी ये जेनरस पर्सन ने देखा कि यार हाउ दिस कपल, हाउ दिस फैमिली इज गोइंग इन दिस रेन एंड टेकिंग दैट मच ऑफ, इनके लिए क्यों नहीं कोई कार बनाता है. क्या है उनके दिमाग में, इनके लिए क्यों नहीं कोई कार बनाता है. उन्होंने अंदाज लगाया, चलो ऑफिस में पहुंच गए. अच्छा, सडनली दैट कपल फेल. सो दैट वाज ऑल द मोर पेनफुल फॉर हिम टू सी. ठीक है. मस्ट हैव गॉट अप एंड ऑल. आई डोंट थिंक क्या हुआ होगा उसके आगे का, कुछ मुझे पता नहीं है. जो भी है, अभी ये रतन टाटा जी कहाँ चले गए, अपने ऑफिस में चले गए. ऑफिस में जाने के बाद उन्होंने अपने मैनेजर्स को बुलाया, आ जाओ, देयर इज अ मीटिंग. आ जाओ, पट सब आ गया. बोले आज ऐसा ऐसा हुआ, सी आई सो हाउ मच इज स्कूटर कॉस्टिंग. किसी ने बोला 50,000, किसी ने कहा 60,000. दैट वाज द ओल्ड टाइम, है ना. 60,000, 50,000. And what is the entry level car costing in our country? So that time it was somewhere about 2 lakh rupees, 2.5 lakh. Can we produce a car which is affordable to the everyone?
can we produce a car which is affordable to everyone? कौन बोल रहे हैं? रतन टाटा. And you know परिणाम क्या था, उन्होंने नैनो बनाया and what was the success and what was the failure story and all. We are not there to discuss. ये रतन टाटा यहाँ बैठा है, hypothalamus. He has observed something. He is not doing anything. He has given command to whom? To the managers. आपको एक कार बनानी है विच इज मोस्ट अफोर्डेबल इन आवर कंट्री, बस बोल के छोड़ दो, अब काम तो उनको करना ही पड़ेगा. हाइपोथैलेमस ने कहा है, दैट इज बॉस ने बोला है. ठीक है. सो व्हाट पिट्यूटरी इज द मैनेजर. ठीक है. पिट्यूटरी कौन है? मैनेजर है. जिनको हाइपोथैलेमस कौन है? बॉस है. बॉस ने कहा हमको करना है ये इन प्रकार. हाइपोथैलेमस ने कहा साहब 16 साल हो गए, अभी मुझे नहीं आएंगे तो कब बुढ़ापे में आएगी. तो उन्होंने पिट्यूटरी से कहा मुझे जनरेट करो बच्चे की. ठीक है. हाइपोथैलेमस ने कहा फलाना एनिमल इसका ब्रीडिंग सीजन रेन के बाद में आता है, मानसून के बाद में. उन्होंने कहा साहब मानसून गया, नाउ स्टार्ट प्रोड्यूसिंग दैट. सो हाइपोथैलेमस इज ऑब्जर्विंग एंड टेलिंग पिट्यूटरी. तो ये क्या करते हैं? ये करते हैं रिलीजिंग हार्मोन. दे आर एक्चुअली secreting variety of kinds of releasing hormones, which will tell pituitary to इनको रिलीज करो भाई. Now what are these releasing hormones? पिट्यूटरी के पास नंबर ऑफ हार्मोन है, इतने सारे हार्मोन है कि ये पूरी ग्लैंड को करीब करीब पूरी ग्लैंड पूरी बॉडी को कंट्रोल कर लेते हैं. दैट इज व्हाई वी ऑफन से पिट्यूटरी इज द मास्टर ग्लैंड. पिट्यूटरी इज वेरी स्मॉल, मटर के दाने के बराबर की ग्लैंड है. वेयर इट इज फाउंड जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस. इट इज लिंक्ड with the hypothalamus by a portal system which you study in the higher classes. What a portal system is, but I'll just tell you कि portal system में क्या होता है? The blood from one organ is opened into some other organ instead of directly opening into heart. So hypothalamus से blood आएगा और वो किस में चला जाएगा? पिट्यूटरी में. और hypothalamus ने हार्मोन रिलीज करा, पिट्यूटरी को मिल गया, हो गया काम. इसने इसको ट्रिगर कर दिया. तो दिस इज एक्चुअली ट्रिगरिंग एंजाइम. ट्रिगर कर रहा है, रिलीज कर रहा है, ट्रिगर कर रहा है. अभी क्या करेगा पिट्यूटरी? पिट्यूटरी के पास तो बहुत सारे काम है भाई. पिट्यूटरी के पास ग्रोथ हार्मोन है. तो आप लोग तो ग्रो कर रहे हैं ना. एलकेजी में आए थे इतने से थे. नहीं वो आएगा नहीं कैमरे के अंदर. कितने थे आप? यू मे बी यू नो एलकेजी चिल्ड्रन 3 फीट क्वार्टर 3.4 मतलब क्वार्टर टू 3 फीट एंड ऑल, इतने ही रहते हैं. और अभी आप कितने हैं? 5.5 फीट, 5 फीट 2 इंच, 5 फीट 6 इंच, और एक तो मुझसे भी आगे निकल रहा है खजूर का पेड़. ठीक है. तो ग्रोथ हार्मोन क्या करेंगे ये? इट विल इंक्रीज द लेंथ ऑफ द लॉन्ग बोन्स, द हैंड्स एंड लेग्स, फीमर, टिबिया, फिबुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, इनकी लंबाई बढ़ा देंगे. ये नहीं है कोबड़ी बढ़ जाएगी, कोबड़ी तुलती रहती है. ठीक है. ग्रोथ हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी. इफ इट इज सीक्रेटेड नॉर्मल तो नॉर्मल ही रहेंगे. जब वो कम सीक्रेट होता है, लेस देन रिक्वायर्ड क्वांटिटी, देन इट लीड टू एब्नॉर्मलिटी दैट इज कॉल्ड ड्वार्फिज्म. टिंगू रह जाते हैं बच्चे. इफ इट सीक्रेटेड मोर देन रिक्वायर्ड अमाउंट, देन इट इज कॉल्ड जिजाइंटिज्म. एक्सेसिवली लंबा हो जाएगा भाई. ठीक है. 6.5 फीट तक तो नॉर्मल है. उसके बाद कोई चले जाते हैं. पाकिस्तान में एक था ना तो शायद आई थिंक इज 7.5 समथिंग. पूरी दुनिया उसको यूं देख के बात करती हो, सबको गर्दन झुका के बात करते हैं. एनीवे, तो ग्रोथ हार्मोन कौन सीक्रेट करेंगे? पिट्यूटरी. नेक्स्ट हार्मोन TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. थायराइड इज द ग्लैंड व्हिच इज फाउंड हियर इन द नेक रीजन. पिट्यूटरी इज ट्रिगरिंग, भैया सिक्रेशन करो. व्हाट इज थायराइड डूइंग? Thyroid is a hormone which is necessary for maintaining metabolic rate. If more thyroid, more metabolism. Less thyroid, less metabolism. If growth is required, repair is required, regeneration is required, more energy is required, more thyroid is required. अब आप लोगों में थायराइड की ज़्यादा जरूरत थी, खैर, और मुझ में कम है. और जो तीसरी, चौथी, पाँचवीं में पढ़ रहा हूँ और ज़्यादा चाहिए. और जो 70, 75, 65, 70
जिनका पूरा काम कुल मिला के दिन में एक ही है, बेड पे बैठे रहना और वहाँ से आते जाते कुछ चेक करते रहना, ऐसे क्यों कर रहे हो, वैसे क्यों कर रहा है, तो दरवाजा बंद नहीं करता, कुत्ते को बांध, ये कर, मेरा खाना लेके, दे आर डूइंग व्हाट, चपड़ चपड़, नो मूविंग, नो साइकिलिंग, नो गोइंग अप, नो गोइंग डाउन, देयर रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इज लीस्ट, रिपेयर भी नहीं होता, घाव बन गया तो ठीक भी नहीं हो रहा, व्हाई, मेटाबॉलिज्म इज लीस्ट। आपका वुंड कितनी जल्दी ठीक हो जाता है बच्चों का, ठीक है। सो फॉर चिल्ड्रन देयर इज मोर थायरोक्सिन, एंड मोर थायरोक्सिन मीन्स मोर एबिलिटी, मोर मेटाबॉलिज्म, मोर हीट जनरेशन। बुड्ढों को ठंड कितनी ज़्यादा लगती है, जवानों को नहीं लगती है ना, वो तो ऐसे ही आ जाते हैं, बोला अरे तुझे ठंड नहीं लग रही, कहाँ ठंड, कहाँ है। और हम अपनी कंट्री में फिर भी सोचते हैं कि बहुत ठंड है, जब 4-5-3 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। एंड यूरोप में तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज द कॉमन टेम्परेचर, येट दे आर रोमिंग विद द शॉर्ट क्लोथ्स एंड ऑल, ठीक है। सो मेटाबॉलिज्म इट प्रोड्यूसेस हीट, ठीक है। TSH समझ गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन विच विल स्टिमुलेट थायराइड टू रिलीज थायरोक्सिन, थायरोक्सिन इन टर्न कॉजेस व्हाट, मेटाबॉलिज्म, ओके। सो अगर ये ज़्यादा सीक्रेट हो जाएगा, हाइपरथायरॉयडिज्म, एंड द पर्सन विल फील हंग्री एवरी नाउ एंड देन, और उसकी बॉडी में ज़्यादा गर्मी पैदा होगी और उसका बॉडी फूलता चला जाएगा और उसकी आंखें प्रोट्रूड हो जाएंगी। इट इज अ वेरी कॉमन डिजीज इन आवर कंट्री, ठीक है। एंड हाइपोथायरॉयडिज्म दैट इज दिस विल बी लेस, सो लेस हार्मोन सेक्रेशन, स्लगिश, भागो आगे 4 कदम करके फिर रुक गया, ठीक है। एंड दुबला पतला, खाना खा ले, भूखे नहीं, ओके। तो हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, अंडरस्टूड, ठीक है। एक और एंजाइम है, एक सॉरी हार्मोन, नॉट एंजाइम, एक और हार्मोन है, ये हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड को सीक्रेट करता है, एड्रिनल कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ACTH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। ये हार्मोन क्या करेगा, एड्रीनल ग्लैंड से कॉर्टिकल हार्मोन्स को सीक्रेट कराएगा, एड्रीनल ग्लैंड। हम एक ही को पढ़ेंगे, देयर आर सेवरल हार्मोन वैसे तो, बट हम एक ही को मेनली पढ़ते हैं। एड्रेनलिन, एड्रेनलिन क्या है, जोश, हाउस द जोश, है ना, जोश, अ हार्मोन ऑफ जोश, a hormone of 3F, a hormone of 3F, 3F क्या है, अगर मान लीजिए आप रात के अंधेरे में किसी नई जगह से जा रहे, मतलब आप जा तो रहे थे, तब उजाला था और अचानक से लाइट चली गई, अभी क्या होगी, आपकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। सिट्टी और पिट्टी क्या है यहाँ, मतलब आपको डर लगेगा, भय सताएगा, बोलो यहाँ अचानक से, और मान लो फिर भी आप जा रहे हैं हनुमान चालीसा पढ़ते हुए, मतलब जो भी आपके इष्ट देव हैं उनको याद करते हैं, अभी आप जा ही रहे एंड अचानक से बिकॉज ऑफ योर नॉइज अ बर्ड और डॉग और एनिमल दैट ऑल ऑफ सडन कम्स आउट एंड रन्स फ्रॉम इन फ्रंट ऑफ यू, अभी आपको क्या होगा, अब मुझे क्या बताना है क्या होगा, आप खुद ही जानते हैं क्या होगा, ठीक है। तो यू विल हैव फियर, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, फियर। फियर के साथ क्या होता है, डर लगना भी जरूरी है ना, ऐड आता है ना, डरना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक डरेंगे नहीं तब तक हम कुछ करेंगे नहीं, जब तक हम डरेंगे नहीं हम कुछ करेंगे नहीं। जब डरते हैं देन व्हाट वी डू, देन व्हाट वी डू, वी ट्राई टू एस्केप, एंड व्हाट इज द वे ऑफ एस्केपिंग, आइदर फाइट और फ्लाइट, या तो आप वहां से भाग जाओ या फिर लड़ने को तैयार हो जाओ, ठीक है। सो दिस हार्मोन एक्चुअली कॉजेस, इट डाइवर्ट्स द ब्लड सप्लाई फ्रॉम ऑल द स्मूथ मसल्स टू द स्केलेटल मसल्स, एंड देन आप में आ जाता है जोश, पहले डरेंगे फिर जोश आएगा, जोश आएगा तो क्या होगा, आप मुक्का मारने के लिए तैयार हो जाएंगे, हाँ आ जाओ, या फिर आपकी जांघों में खूब एनर्जी सप्लाई होगी, आपके पैरों, एंड यू कैन रन सर पर पैर रख के,
ये तो कहावत है, कोई सर पर पैर रख के कैसे दौड़ेगा। एनीवे, तो सर पर पैर रख के दौड़, मतलब ही विल फ्लाई फ्रॉम द सी टू एस्केप। आपका एक फ्रेंड है, उसने कहा आपने 2 दिन की छुट्टी मार ली, आपने अपने फ्रेंड से कहा यार तेरी साइंस की कॉपी दे दे, उसने कहा घर आके ले जा। आप बोले घर क्यों आऊँ, व्हाट्सएप कर दे। हमने कहा आजा यार, थोड़ी बातें भी कर लेंगे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी पी लेंगे, चिप्स विप्स भी खा लेंगे, मेरे पास एक नई मूवी आई वो भी देख लेंगे। ठीक है भाई, आप गए, जैसे ही उसके दरवाजे पर पहुंचे, उसका राक्षस डॉग डेविल वो स्टार्टेड जंपिंग शाउटिंग एंड जो भी है। एंड जैसे ही आपको वो बेचारा निश्चिंत होकर खड़े थे गेट पे, अचानक सा आ गया, तो अभी क्या होगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रोंगटे। ठीक है, एंड यू विल गेट अफ्रेड, फियर, एंड नो सूनर यू गेट फियर द डॉग, क्या तो मजा आ गया, बोले तो डर गया। जैसे आप डरते हैं, सामने वाले को क्या आ जाता है, मजा आ जाता है। फिर आप थोड़ा अलग हट जाते हैं, कार के पीछे चल जाते हैं, किसी और जगह पे चल जाते हैं, थोड़ा दूर पेड़ के नीचे, जहाँ जाके तेरे अपने फ़ोन को, अपने दोस्त को फ़ोन करते हैं, बोले अब भाई तूने मेरे को यहाँ पे कटवाने के लिए बुलाया था कि अपने डॉग से, हैं? When you knew कि I am coming, why you are not tied your dog? तो बोला अरे वो तो कुछ नहीं करता, वो तो ऐसा ही है, तू तो आ जा। और कैसे आ जा भैया, उसके दांत देखें इतने बड़े बड़े थे, तू आ, उसको पहले बांध के आ। सो व्हाट ही डज, योर फ्रेंड कम्स, ये जस्ट उसका वो गले का पट्टा को ऐसे पकड़ करके आ जाता है और आपके लिए गेट खोल देता है, वो भोगता है तो उसको पीछे चल, एंड यू गो, एंड वो कुछ नहीं करता, ये ऐसा ही है। थोड़ी देर आप उसके सामने बैठे हो, आपके सामने बैठ गए, नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो देयर यू नो तो कुछ नहीं करता, फ्रेंडली डॉग है, वो तो ऐसे ही भौंक रहा था अनजान। नेक्स्ट टाइम यू गो तो आप कैसे जाते हैं, निडर होकर के, निश्चिंत होकर। So when you are nider and when you are निश्चिंत, then what happens, the hormones which are causing fear are not secreted, and then what happens, you will not get frightened, and when you are not frightened, सामने वाला वो हार्मोन ही नहीं सीक्रेट हो, and if the hormone is not secreted, the other animal which are sitting in front of you will remain quiet. उसको पता है भैया आप तो डर ही नहीं रहे हो, जब आप नहीं डर रहे तो वो काहे को अपना एनर्जी वेस्ट करेगा। सो हार्मोन ऑफ 3F समझ आ गया। एड्रेनलिन और भी बहुत सारे हार्मोन सिक्रेट करते हैं जिनको हम कहते हैं कॉर्टिसोल्स होते हैं, जिसमें सेक्स कॉर्टिकॉइड्स होते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं, एंड द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर एक्चुअली मेटाबोलाइजिंग ऑल द एनर्जी प्रोड्यूसिंग मॉलिक्यूल्स टू प्रोड्यूस मोर एनर्जी, एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स आर मेंटेनिंग द मिनरल कंटेंट इन द ब्लड, एंड द सेक्स कॉर्टिकॉइड्स विल मेंटेन योर सेक्सुअल सिस्टम। ओके, तो ये हो गया। और लास्ट पढ़ लेते हैं पिट्यूटरी का। पिट्यूटरी का लास्ट है दैट इज FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, ठीक है ना। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या कर रहा है, दैट इज मेंटेनिंग योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेंटेनिंग योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सो द पर्सन बिकम रिप्रोडक्टिवली केपेबल। मुझे आना, दाढ़ी आना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप हो जाना, एंड जो भी है। तो FSH इज एक्चुअली कंट्रोलिंग द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, and the reproductive hormones in turn will produce other hormones which will be causing this mustaches and beard and high low pitch voice and this Adam's apple. That will study little later. अभी हम केवल FSH के बारे में इतना जान रहे हैं कि it is maintaining the healthy reproductive system, or the growth and maintenance of the reproductive system is the function of FSH. तो ये सब हो गए किसके काम, पिट्यूटरी के। थायराइड मैंने यही तो पढ़ा दिया था आपको, थायराइड ग्लैंड इज फाउंड। यहाँ एक ग्लैंड मिलती है, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड। यू रिमेंबर व्हाट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड? वेरी गुड। तो आपने बताया सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड इज पैंक्रियास, जो मैं जानता हूँ कुल मिला के 2 जनों ने बताया, किसी ने नहीं, ठीक है। सो होल बिकॉज यू ऑल आर नॉट स्टडीइंग, क्या बताया। तो सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड इज पैंक्रियास। नाउ पैंक्रियास वी ऑलरेडी स्टडीड वाज अ exocrine gland. It was secreting pancreatic juices with the help of duct, but the pancreas is also acting as endocrine. Pancreas is also acting as endocrine. So pancreas
इज सीक्रेटिंग टू इंपॉर्टेंट हार्मोन, तीसरा भी होता है। पहला है इंसुलिन, कौन नहीं जानता है इसको। दूसरा है ग्लूकागॉन एंड द थर्ड वन इज सोमैटोस्टैटिन। इंसुलिन क्या करता है? Whenever there is excess of sugar in blood, it will convert the excess of sugar into glycogen. Insulin क्या कर रहा है? Insulin is converting excess of sugar. ठीक है, ग्लूकोज लिख देते हैं, शुगर को अल्टीमेटली चेंजेस इनटू ग्लूकोज एंड ग्लूकोज आल्सो इज अ टाइप ऑफ शुगर। मान लीजिए इसका अमाउंट कितना हो गया, इट इज ग्रेटर देन 100 ml, 100 मिलीग्राम एंड 100 ml ऑफ ब्लड, इससे ज्यादा हो गया तो ये क्या करेंगे? इंसुलिन विल कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजन। इंसुलिन विल कन्वर्ट इट इनटू ग्लाइकोजन। ग्लाइको स्टैंड फॉर ग्लूकोज, जन मतलब जनरेटिंग, दैट इज ग्लूकोज जनरेट करने वाला मॉलिक्यूल। तो यहाँ तो ग्लूकोज से हमने उसको बनाया, पर ये अल्टीमेट नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी इसको यहाँ कन्वर्ट कर देंगे। चैप्टर 6 में हमने पढ़ा था इंटरनल रिजर्व फॉर द प्लांट वाज स्टार्च, इंटरनल रिजर्व फॉर एनिमल इज ग्लाइकोजन। तो जब एक्सेस में आपने जलेबी खा ली, खूब सारी गुलाब जामुन पिए, खूब सारे रसगुल्ले का जूस आप पी गए, खूब सारा आपने शरबत पी लिया या आइसक्रीम खा लिया, फुकट की मिल रही थी शादी में, तो आप बार बार गए, कप आफ्टर कप आपने आइसक्रीम खा ली, तो यू हैव मोर एंड मोर शुगर, and that sugar will be ultimately changed into glucose, and the glucose when goes into the blood, its amount increases, then it will be stored in glycogen and kept in the muscles and liver. and जब आपका ब्लड शुगर लेवल फॉल हो जाएगा, आप देखते हैं ना असेंबली में कई सारे बच्चे टप 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 करके टपकते हैं। so when the glucose level falls below this 100 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड से कम हो जाते हैं, तो आदमी धड़धड़ा के नीचे गिर जाता है। ऐसे नहीं गिरने देती है बॉडी के पास में if the glycogen is there, what body will do? It will tell the liver, ले क्या कर रहे हो भैया, कम हो गया ना, तो liver will add this into, तो ये जो ऐड करने का काम किसका है? ग्लूकागॉन। जब ग्लूकोज चला जाता है तो ग्लाइकोजन को इसमें ट्रांसफर करने का काम किसका? ग्लूकागॉन का। तो ग्लूकागॉन इज एक्चुअली कन्वर्टिंग ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। कैन यू सी? ठीक है, तो ग्लूकागॉन इज कन्वर्टिंग ग्लाइकोजन बैक इनटू ग्लूकोज। उधर से इधर की तरफ एरो बनाए। व्हेन द ब्लड शुगर लेवल फॉल्स बिलो 80 मिलीग्राम पर 100 ml, और अगर नहीं होंगे तो फिर आपको गिडीनेस फील होगी, तब हम कहते हैं कि भाई इसको ग्लूकोज पिलाओ, एक चॉकलेट खिलाओ। चॉकलेट कौन से वाली? अच्छी वाली जिसके अंदर ग्लूकोज हो, ना कि ऐसी वाली जो कि सैकरिन वैकरिन की बनी हो। आई थिंक इट इज क्लियर। तो इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन समझ आ गए। इफ द इंसुलिन इज सीक्रेटेड मोर देन रिक्वायर्ड अमाउंट, नहीं, इफ इंसुलिन इज सीक्रेटेड लेस देन रिक्वायर्ड अमाउंट, देन क्या होगा? आवर बॉडी विल फेल टू कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन एंड द ब्लड शुगर लेवल विल बी हाई। व्हेन द ब्लड शुगर लेवल इज हाई, तो प्रॉब्लम क्या है? बोले प्रॉब्लम क्या है? अच्छा है ना सर, ज़्यादा एनर्जी बनेगी। नहीं साहब, क्या होता है जब ब्लड में मिनरल्स ज़्यादा हो जाते हैं, शुगर ज़्यादा हो जाते हैं, तो ब्लड गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा होने का मतलब क्या? वो सारी सेल्स से पानी विड्रॉ करने लग जाएगा। तो फिर क्या होगा? फिर तो आप जानते हैं क्या होगा। ठीक है, वी नो दैट देयर शुड बी 70% वाटर इन द सेल, वो नहीं रहेंगे ना वहाँ पे। चलिए, थर्ड है सोमेटो। सोमेटो मतलब सोमा मतलब बॉडी, स्टैटिन मतलब कांस्टेंट। तो ये आपकी बॉडी की ग्रोथ को कांस्टेंट कर देगा। जितने बढ़ गए, अब और नहीं ग्रो करना। ग्रोथ हार्मोन कौन सा था? पिट्यूटरी के अगेंस्ट काम करेंगे सोमेटोस्टैटिन। बोलेंगे हो गया ना भैया बहुत, अब कितना बड़ा होगा? ताड़ के पेड़ के जैसे बढ़ा ही जा रहा है। ठीक है, तो सोमेटोस्टैटिन इज द हार्मोन विच इज एक्चुअली कंट्रोलिंग द ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ। ठीक है, दैट्स मोर देन इनफ फॉर टुडे। एड्रेनलिन मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, और मेरे को केवल रिप्रोडक्टिव हार्मोन और उसके फंक्शंस बताने हैं।
बता ही देता हूँ मैं, क्या ही फर्क पड़ता है, 5 मिनट घर पे ही तो बैठे हो, अभी थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे। ओके, सो FSH जो था दैट वाज इन्फ्लुएंसिंग, FSH वाज ऑफ द पिट्यूटरी व्हिच वाज इन्फ्लुएंसिंग द टेस्टिस एंड द ओवरीज। Now testes will be found in the male and the ovaries are found in the female. तो टेस्टिस के अंदर जब ये हार्मोन पहुंचेगा FSH तो क्या करेगा, वो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वगैरह को अच्छे से डेवलप कर देगा, एंड देन इट विल सीक्रेट अ हार्मोन दैट इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, और अदर इन सिंपल लैंग्वेज यू कैन से इट इज एंड्रोजन, ANDROGEN, एंड्रोजन मतलब मर्दानगी, मतलब मुच्छा, दाढ़ी, एडम्स एप्पल, सीना चौड़ा, भारी आवाज, तन जाना और खूब मस्कुलर हो जाना, एंड कभी कभी पेनिस का इरेक्शन हो जाना। तो दीज आर द सम ऑफ द चेंजेस व्हिच वी सी इन द मेल वंस इट रीचेस टू एडल्टहुड। ठीक है, एडोलेसेंस में क्या क्या चेंजेस आए एक बार फिर से बता देते हैं। मुच्छा आ जाना, दाढ़ी आ जाना, ठीक है, सीने पे बाल तो फिर मेल फीमेल दोनों के आएंगे, अंडर आर्मपिट मेल फीमेल दोनों का आएंगे, क्या कहते हैं प्यूबिक रीजन में मेल फीमेल दोनों में आएंगे, सो दैट इज द कॉमन थिंग। देन एडम्स एप्पल केवल मेल में आएंगे, चेस्ट चौड़ा हो जाएगा मेल का, मस्कुलाइन बॉडी हो जाएगी, हाथ लगाओगे तो थोड़ा कड़क कड़क सा लगेगा, ठीक है, तो दैट इज मस्कुलेचर, एंड इसके अलावा आवाज़ उसकी भारी हो जाएगी। भगवान ने बहुत सारी खूबसूरती पैक कर दी है मेल के अंदर, हमको कोई लिपस्टिक पाउडर क्रीम वगैरह चौपड़ने की जरूरत नहीं है। गॉड हैज गिवन अस नेचुरल, तो ये सारे मेल्स के साथ में, चाहे मोर हो, चाहे शेर हो, चाहे जो भी है ना, हम तो है ही हैं। फीमेल्स के अंदर क्या होता है, दैट इज व्हेन द सेम हार्मोन रीचेस इनटू देयर टेस्टिस, तो सॉरी ओवरीज, ओवरीज, तो ओवरीज में से 2 हार्मोन निकालेंगे, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, एंड एस्ट्रोजन अगेन विल ब्रिंग द फेमिनाइन कैरेक्टर इन देम, नो दाढ़ी, नो मूछा, ठीक है, नो हेयर ऑन द चेस्ट, बट हेयर अंडर आर्मपिट एंड अंडर हेयर अंडर इन द प्यूबिक रीजन, ठीक है, नो मस्कुलेचर बट द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, नो एडम्स एप्पल एंड हाई पिच ऑफ वॉइस, यहाँ चीखी तो वहां सुनाई दे, ठीक है, मे बी फॉर सुरक्षा, मे बी वट एवर गॉड हैज गिवन फॉर सम रीजन वट एवर, ठीक है, तो ये चेंजेस आपको मिले, एंड फेमिनाइन बॉडी सॉफ्ट सॉफ्ट सा, ठीक है, तो these all are the changes which can be observed in the female's body once she reaches into adolescence. ठीक है, that's more than enough. I have taken some extra minutes, so you can watch this video even on Sunday. Okay, that's all children. I'm prepared the notes and you can ask your problem. With this we come to the end of endocrinal control and coordination in animals. अब मेरे को केवल control and coordination plants पढ़ाना है, जो हम मंडे से पढ़ेंगे। गुड डे चिल्ड्रन, एंजॉय योर डे, हैप्पी हॉलीडे।